خبروں کی تفصیلات سب سے پہلے بات کریں موسم برسات سے قبل ہی ہلکی جھڑی نے ملک کے تیسرے بڑے شہر کو ڈبو دیا۔ واسا فیصل آباد کا نکاسی نظام فیل ہو گیا۔ موسم برسات سے قبل ہی ہلکی جھڑی سے ملک کا تیسرا بڑا شہر پانی پانی ہو گیا۔ واسا کا نکاسی آب کا نظام مکمل فیل ہو گیا۔ سرگودا روڈ لاری اڈے کی سڑک خستہ حال رہی، صحیح کسر بارش نے نکال دی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ 1 سال مکمل ہو گیا لیکن سرگودا روڈ کی تعمیر نہ ہو سکی۔ بارش کے پانی کی وجہ سے سارا نظام درہم بھرم ہو جاتا ہے۔ کافی پانی ہے، ہم لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، بہت زیادہ پانی ہے، کوئی واسا والے نظر نہیں آ رہے ہیں ادھر نا۔ کافی ذوالفقار کالونی میں اندر گلیوں میں کافی پانی ہے۔ سمن آباد، جھال، پیپلز کالونی، وارثپورہ اور شہر کے پوش علاقے بارشی پانی میں ڈوب گئے۔ چند گھنٹوں کی بارش نے واسا کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ شہریوں نے واسا کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ واسا کی ایک ٹیم نہیں جو پانی کی نکاسی کر رہی ہو۔ پیچھے وارثپورے میں آدھی آدھی گاڑی ڈوبی پئی ہے۔ یہ واسا والوں کو چاہیے کہ خیال کرے، کچھ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں، کپڑے گندے ہو رہے ہیں۔ صنعتی شہر کے باسیوں نے موجودہ صورتحال پر ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد جنید کے ساتھ وسیم نقوی، سٹی 41، فیصل آباد۔ فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں ہونے والے بارش سے 18 سے 40 ملی میٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ ایم ڈی واسا جبار انور کی ہدایت پر فیلڈ سٹاف نے اقبال سٹیڈیم، لسانی پولی اور سرگودا کو مکمل زیر آب کر دیا ہے۔ فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں ہونے والی بارش نے 10 ملی میٹر تک بارش ریکارڈ کی گئی۔ ایم ڈی واسا جبار انور کی ہدایت پر فیلڈ سٹاف نے اقبال سٹیڈیم، لسانی پولی، سرگودا روڈ، شیخو پورہ روڈ سے نکاسی آب کا کام مکمل کر لیا۔ فیصل آباد کی علامہ اقبال کالونی میں سب سے زیادہ بارش 21 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ سب سے کم مدینہ میں 16 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ گلستان کالونی اور غلام محمد آباد میں 19 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ڈوگر بستی میں 17 ملی میٹر بارش برسی۔ مینیجنگ ڈائریکٹر واسا جبار انور کی ہدایت پر آپریشن سٹاف بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے محترک رہا۔ اقبال سٹیڈیم، لسانی پولی، سرگودا روڈ، منڈی موڑ، سمندری روڈ، جنگ روڈ سے پانی کی نکاسی مکمل کر لی گئی۔ اسی طرح عیدگاہ روڈ، جیل روڈ، شیخوپورہ روڈ، نشات آباد پل، عبداللہ پور پل سے بھی نکاسی مکمل ہو گئی۔ ڈچ کوٹ روڈ، سات بیلا، جنرل ہسپتال سمن آباد، سوسا روڈ سے بھی پانی کی نکاسی کو مکمل کر لیا گیا۔ جھنگ شہر کے متعدد علاقے بارشی پانی میں ڈوب گئے۔ میونسپل کمیٹی بارشی پانی نکالنے میں ناکام۔ سرکاری دفاتر میں شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ جنگ میں تیز بارش سے کئی علاقے زیر آب آ گئے۔ میونسپل کمیٹی نکاسی آب میں مکمل ناکام ہو گئی۔ شہر بھر کی گلی محلوں میں بارشی پانی جمع ہونے سے شہریوں کو دشواری کا سامنا رہا۔ تجارتی مراکز یوسف شاہ روڈ پر بھی پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات ہیں، جبکہ ٹریفک کی روانی بھی شدید متاثر ہونے لگی۔ جب بارش آتی ہے تو پورا شہر ڈوب جاتا ہے۔ یہ فیصل آباد ڈویژن کا میرا خیال یہ پہلا شہر ہے جہاں پر نہ تو کوئی سیوریج سسٹم ہے، نہ کوئی پانی کا نکاس کا سسٹم ہے۔ یہ مین جگہ ہے جہاں پر شہریوں کے ایکسیس ہوتی ہے، جہاں سے پورے شہر نے گزر کر جانا ہوتا ہے۔ اور نہ صرف یہ یوسف شاہ روڈ کا یہی مسئلہ ہے بلکہ فوارہ چوک اور یہ دیگر پورے روڈ جو ہیں وہ سارے بند پڑے ہیں۔ نہ تو کوئی سیوریج کا یہاں پر نظام ہے، نہ تو انتظامیہ کوئی کرتی ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ سیوری لائنوں کی صفائی نہ ہونے سے پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی انتظامات نہیں کیے جاتے۔ اگر بر وقت انتظامات کیے جاتے تو شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ باب اختیار دے واسطے صدا کیا کرتے ہیں انہوں نے کہ بھئی مہربانی کی جائے، شہر دے حال نو سدھاریا جائے، سیوریج دے نظام نو درست کیتا جائے تاکہ پانی دی نکاسی ہو سکے تے لوکاں نو آن جان دے وچ جڑی ہے نا جی وہ دقت دا سامنا نہ ہو۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر عبداللہ خرم نیازی سے صورتحال پر نوٹس لینے اور نکاسی آب کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41، جنگ۔ توبہ میں موسلا دھار بارش کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی ناقص پلاننگ شہریوں کے گلے پڑ گئی۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے اور بارش سے موسم دلکش ہو گیا، لیکن انتظامیہ کی غفلت سے بارش شہریوں کے لیے زحمت بن گئی۔ توبہ کے متعدد علاقے زیر آب آنے سے باسیوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ گوشالہ، اسکول نمبر 1، عیدگاہ روڈ، صدر بازار، جھنگ روڈ، وریام روڈ اور شورکوٹ روڈ پر پانی جمع ہو گیا۔ دکانیں پانی میں ڈوبنے سے کاروبار بھی ٹھپ ہو گئے۔ بچوں کو اسکول جانے میں بھی مشکل ہو رہی ہے، باہر نکلنے میں بھی مشکل ہو رہی ہے۔ ڈی سی او صاحب تھے، ان سے پہلے ظاہر سہیل صاحب پبلک ہیلتھ انجینئرنگ آفس میں بھی گیا ہوں میں خود اپلیکیشن لے کے، پر ان لوگوں نے کوئی بات نہیں سنی۔ ڈپٹی کمشنر ہاؤس کے قریب موجود شہر کا پوش علاقہ مصطفیٰ آباد بھی محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کی ناقص پلاننگ کی بھین چڑھ گیا۔ چند ماہ قبل تعمیر ہونے والی سڑک کا لیول نہ ہونے سے علاقہ پانی میں ڈوب گیا۔ اسکول آنے والے طلبہ کو مشکل۔ نومبر میں بنی ہے، ٹھیکیدار صاحب کو ہم نے کہا کہ سر پورے ہم تو بڑے خوش تھے سڑک بن رہی ہے، لیکن پتہ بعد میں چلا جب سڑک کا لیول ہی انہوں نے ٹھیک نہیں کیا۔ شبیر صاحب ہیں ہمارے بڑے محترم ہیں، ٹھیکیدار نے تو ساری ان پہ بات ڈال دی، لیکن ہمارے وہ محلے دار ہیں بڑے اچھے ہیں، تو ان کے آگے سے سڑک ساری
جو اونچی کر دی, جو پانی کا فلو تھا وہ بہاؤ اب ختم ہو گیا, سارا ادھر سینٹر پہ آ گیا. شہریوں کا کہنا ہے کہ بر وقت پلاننگ نہ کی گئی تو مستقبل میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ڈپٹی کمشنر صورتحال کا نوٹس لیں. کیمرہ مین فخر عباس کے ساتھ مبشر حسن نقوی, سٹی 41, توبہ ٹیک سنگھ. ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. توبہ ٹیک سنگھ میں پولیس اہلکار نے ہمدردی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی. بزرگ سائل کے لیے بارش کے پانی کے باعث ڈی پی او دفتر آنا دشوار ہوا تو پولیس اہلکار نے بزرگ کو کندھے پر اٹھا کر دفتر پہنچایا. تحریک انصاف کے رہنما اور سابق ممبر قومی اسمبلی غلام بی بی بھروانہ فاروق حبیب سابق صوبائی وزیر میاں وارث عزیز علی اختر اینٹی کرپشن کے ریڈار پر آ گئے. تحریک انصاف کے رہنما و سابق ممبر قومی اسمبلی غلام بی بی بھروانہ اور فرق حبیب اینٹی کرپشن کے راڈار پر. سابق صوبائی وزیر میاں وارث عزیز اختر علی پر بھی اینٹی کرپشن کا شکنجہ سخت. اینٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دیں. اینٹی کرپشن کے مطابق سابق ایم این اے پی ٹی آئی غلام بی بی بھروانہ کا چک نمبر 243 میں 50 ایکڑ سرکاری اراضی پر قبضے کا انکشاف ہوا. غلام بی بی بھروانہ نے 50 ایکڑ سرکاری اراضی کی سرکاری فیس خزانے میں جمع نہیں کروائی. ترجمان اینٹی کرپشن کے مطابق پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر فرق حبیب نے سرکاری اراضی پر غیر قانونی کار سٹینڈ بنا رکھا ہے. سابق ایم پی اے وارث عزیز نے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی میں تعیناتی کے دوران 2043 تک اسٹیٹ مینجمنٹ کرنا تھی. وارث عزیز نے اس منصوبے میں 2500 کنال زرعی اراضی کو رہائشی میں تبدیل کر کے کروڑوں روپے کا گھپلہ کیا. اینٹی کرپشن حکام کے مطابق پی ٹی آئی رہنما طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئے. رمضان آتے ہی مہنگائی نے سر اٹھا لیا. لوگ مختلف اشیاء کی قیمتوں میں اضافے سے پریشان. پھل اور سبزیاں عوام کی پہنچ سے دور ہو گئے. رحمتوں برکتوں کے مہینے رمضان المبارک میں مہنگائی کے طوفان نے شہریوں کو نڈھال کر دیا. پھل اور سبزیاں عوام کی پہنچ سے باہر ہو گئیں. ریٹ لسٹ میں روز قیمتیں بڑھنے لگیں. پیاز, لیموں, کھجور, سبز مرچ سمیت ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھونے لگی. ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے. غریب آدمی کا کوئی زندگی نہیں کی انہوں نے لیف چاہیے وا, چیزاں سستیاں ہونی چاہیے. رمضان کا مہینہ وا, کوئی ترس کھانا چاہیے. انہوں نے روزیاں تے ترس کھانا چاہیے. سیب, کیلا, کنو, خربوزے کی قیمت بھی ہوش اڑانے لگی. شہری کہتے ہیں کیا خریدیں کیا نہ خریدیں سمجھ میں نہیں آتا. مہنگائی کچھ خریدنے کی اجازت نہیں دے رہی. افطار کے بعد بھی روزہ ہی رکھنے پر مجبور ہیں. اتنی مہنگائی ہو چکی ہے, غریب عوام پس رہی ہے, لیکن حکومت کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. اوپر والی حکومت ملی ہوئی ہے, سبھی ملی ہوئی ہے, سبھی اپنی اپنی پالیسی پہ کھڑا ہوا ہے. سمجھ لگی ہے لوگ رمضان کے مہینے میں لوگ چیز سستی کرتے ہیں, مگر یہاں پہ مہنگائی بہت زیادہ ہے. شہریوں نے رمضان المبارک میں حکومت سے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ مریم رضا, سٹی 41, فیصل آباد. نگران حکومت کی جانب سے فیصل آباد کے مختلف پوائنٹس پر مفت آٹے کی فراہمی جاری. ضلع انتظامیہ کے مطابق ایک خاندان کو 8 دن کے وقفے سے 3 تھیلے آٹا مفت فراہم کیا جائے گا. فیصل آباد کے مختلف پوائنٹس پر مفت آٹے کی تقسیم جاری ہے. رمضان اسپیشل پیکج کے حصول کے لیے آٹا لکھ کر شناختی کارڈ نمبر لکھیں اور 8070 پر میسج کریں. اس کے بعد اہلیت کا میسج وصول ہونے پر اصل شناختی کارڈ کے ہمراہ فری آٹا پوائنٹ پر آئیں. ضلع انتظامیہ کی جانب سے اقبال اسٹیڈیم, کلیم شہید پارک, اسپورٹ کمپلیکس غلام محمد آباد, ہاکی اسٹیڈیم, ماڈل بازار جھنگ روڈ, اسپورٹس کمپلیکس سمن آباد سمیت 13 جگہوں پر مفت آٹا پوائنٹس قائم ہیں. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ. ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਟਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਟਾ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ. شہریوں نے مفت آٹے کی فراہمی کو پنجاب حکومت کا احسن اقدام قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ حکومت نے ماہ رمضان میں غریب کے لیے روٹی کھانا آسان کر دیا. شہریوں کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ حکومت نے رمضان المبارک میں غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی آسان کر دی. ہاں جی بہت اچھا ہے, لیکن انہوں نے صرف یہ رمضان پیکج کیا ہے, انہیں رمضان کے بعد بھی ایسا کرنا چاہیے. حکومت ਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਕਦਾਮ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ. ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ ਆਏਗੀ. شہریوں کا کہنا تھا کہ اتنی مہنگائی میں مفت آٹا مستحق افراد کے لیے ریلیف کا باعث ہے. کیمرہ مین وحید کے ساتھ مریم رضا, سٹی 41, فیصل آباد. نگران حکومت کی جانب سے شہریوں کو ریلیف مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری. جنگ میں 2,15,000 سے زائد آٹے کے تھیلے فراہم کر دیے گئے. جھنگ میں نگران حکومت کی جانب سے شہریوں کو مفت آٹے کی فراہمی کا سلسلہ جاری. جھنگ میں 131 آٹا پوائنٹ قائم کیے گئے, جہاں شہریوں کو 2,15,000 سے زائد آٹے کے تھیلے فراہم کر دیے گئے.
जंग सिटी और सदर में 1,07,000 जबकि शोरकोट में 38,700 से जायद थैले तकसीम किए गए। अहमदपुर सियाल में 41,200 और 18 हजारी में 27,000 से जायद थैले तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने कहा कि जंग में 4,90,000 खानदान मुफ्त आटे से मुस्तफीद होंगे। मजमूई तौर पर 14,90,000 से जायद आटे के थैले दिए जाएंगे। डिमांड की असेसमेंट की थी और जो हमने असेसमेंट की थी कहाँ पे पब्लिक का कितना फ्लो होगा, कहाँ पे कितनी डिमांड होगी फ्लोर की, वो अब हमने सारा डाटे के बेस पे उसको एनालाइज कर लिया है। हम फुली प्रिपेयर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जंग में बड़ा बेहतरीन और स्मूथ काम चल रहा है। इंतजामिया के मुताबिक पुराने या स्कैन न होने वाले शनाख्ती कार्ड के लिए सुपर यूजर मुतारिफ करवा दिया गया है, जिससे आटा लेने के अहल अफराद को आसानी होगी। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। यहाँ बात करें फैसलाबाद डी-टाइप पुल कैनाल से मुल्हिका क्रेन बेल्ट पर बनाया गया रमजान बाजार अबतर सूरत हाल का शिकार। 2 साल कबल बनाए गए स्टॉल्स और उनकी छतें टूट फूट का शिकार हो गए। फैसलाबाद में डी-टाइप पुल से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट में वाक़ सस्ता मॉडल बाजार खंडर में बदल गया। मॉडल बाजार की छतें टूट फूट का शिकार हो गई, जबकि दीवारें भी शदीद खस्ता हाली का शिकार हैं। शहरियों को रिलीफ फराहम करने वाला सस्ता मॉडल बाजार तबाही का मंजर पेश कर रहा है। इलाका मकीन कहते हैं सस्ते रमजान बाजार से आवाम को रिलीफ मिलता था। इसमें दालें सस्ती मिलती हैं, घी सस्ता मिलता है, चीनी मिलती है, आटा मिलता है, बोतलें वगैरह हैं, गोश्त है, सब कुछ मिलता है। अगर नहीं लगा तो देख लें, आपके सामने है सारा कुछ। इलाका मकीन का कहना था कि मुफ्त आटा निगरान हुकूमत की बेहतरीन काविश है, लेकिन हुकूमत सस्ते रमजान बाजार भी लगाए ताकि आवाम को मजीद रिलीफ मिल सके। लोगों को अच्छी चीजें मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं और ये पहले खंडराक हो चुका है तो दोबारा ये लगना चाहिए। शहरियों ने माह सियाम में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी से सस्ते रमजान लगाने की अपील की है। कैमरामैन ईमान अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब चिन्योट में किसाबों के दूसरे रोज भी हड़ताल जारी। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा कहते हैं मुशावरत के साथ मुकर्रर करदा कीमतों पर ही फरोख्त की इजाजत दी जाएगी। चिन्योट में कसाबों ने दूसरे रोज भी हड़ताल जारी रखी। कसाबों ने सरकारी कीमत पर मटन और बीफ फरोख्त करने से इनकार कर दिया है। कहते हैं इंतजामिया के जुर्माने काबिल कबूल नहीं है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर कहते हैं सरकारी कीमतें स्टेक होल्डर की मुशावरत और दीगर शहरों के मवाजने के बाद तय पाई है। उन पर फरोख्त को यकीनी बनाया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई भी की जाएगी। हमारी जो ताजर बरादरी है उनके साथ बैठ के हमने जो हमारी प्राइस लिस्ट है उसको नोटिफाई किया है। तो आज से जो है हमारा बिलखुसूस रमजान के दौरान हमारा फोकस होगा कि जो मार्केट के अंदर अशिया खुर्दोनोश हैं वो नोटिफाइड प्राइस लिस्ट के ऊपर अवाम नास को अवेलेबल हों। कसाबों की हड़ताल से शहरी रमजानुल मुबारक के दूसरे रोज भी बीफ और मटन से महरूम रहे। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार घुमन, सिटी 41 चन्योट। स्कूलों में बच्चों के लिए 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा किताबों की किल्लत का सामना। असातिज़ा ने बच्चों से पुरानी किताबें वापस मांग ली। दूसरी जानिब फैसलाबाद समेत पंजाब भर में इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के असातिज़ा की तनख्वाहें लटक गईं। स्कूल में बच्चों के लिए 1 करोड़ 60 लाख से जायद किताबों की किल्लत का सामना। असातिज़ा ने बच्चों से पुरानी किताबें वापस मांग लीं। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रवां साल 5 करोड़ 10 लाख किताबें फराहम करनी थीं। टेक्स्ट बुक बोर्ड पंजाब की जानिब से 3.5 करोड़ किताबें स्कूलों को फराहम की जा चुकी हैं। पंजाब भर के स्कूल्स में नए तालीमी साल का आगाज 1 अप्रैल से होगा। बकिया किताबों की फराहमी के लिए प्रोग्राम मॉनिटरिंग यूनिट ने टेक्स्ट बुक बोर्ड को मरासला लिख दिया, जिसमें दरखास्त की गई है कि फौरी तौर पर 1 करोड़ 60 लाख किताबें फराहम की जाएं। याद रहे कि कुरान की लाजमी तालीम के लिए 1 करोड़ से जायद तर्जमातुल कुरान की किताबें भी अलग से प्रिंट होना बाकी हैं। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के असातिज़ा की तनख्वाहें लटक गईं। सेक्रेटरी फाइनेंस ने सेकंड शिफ्ट में पढ़ाने वाले असातिज़ा के लिए फंड्स जारी करने से साफ इनकार कर दिया। सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से जनरल इलेक्शन तक फंड्स रोकने का जवाब पेश कर दिया। असातिज़ा को मुआवजों की अदायगी के लिए पंजाब हुकूमत से फंड्स की डिमांड की गई थी। इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों के असातिज़ा को मुआवजे मिलने का इंतजार है। CEO एजुकेशन फैसलाबाद इफ्तिखार खान कहते हैं कि हुकूमत जब फंड्स फराहम करेगी हम असातिज़ा को तनख्वाहें जारी कर देंगे। मुआवजा न मिलने से इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में 1 अप्रैल से एडमिशन मुहिम भी मुतासिर होने का खदशा है। सरकारी स्कूल्स में 8वीं जमात तक इम्तिहानात के इनेकाद के बाद तलबा को नताइज देने का वक्त आ गया है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने सरकारी स्कूल्स में सालाना नताइज की तकरीबात रखने के लिए CEO एजुकेशन को मरासला भिजवा दिया। स्कूल बेस्ड असेसमेंट के रिजल्ट कार्ड 31 मार्च तक बच्चों को दे दिए जाएंगे। FBR का जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए कौमी खजाने को 30 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी के खिलाफ एक्शन।
FBR का जारी सेल्स टैक्स इनवॉइसेस के जरिए कौमी खजाने को 30 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने वाली कंपनी के खिलाफ एक्शन। प्योर एंटरप्राइजेस को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। मुलजिमान ने मजमूई तौर पर 1 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स चोरी की। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम ने जालसाजी करने वाली कंपनी प्योर एंटरप्राइजेस को ब्लैक लिस्ट कर दिया। प्योर एंटरप्राइजेस के तमाम बैंक अकाउंट्स भी फ्रीज कर दिए गए। FBR हुकाम के मुताबिक टैक्स और जुर्मानों की अदायगियों तक मुलजिमान को कारोबार करने की इजाजत नहीं होगी। प्योर एंटरप्राइजेस के मालिकान ने फैसलाबाद, सरगोदा और लाहौर में मुख्तलिफ अफराद के साथ मिलकर फर्जी कंपनियां बनाई। हुकाम के मुताबिक मुलजिमान इम्पोर्ट की आड़ में मुख्तलिफ अशिया के दरामद के बोगस दस्तावेजात के जरिए जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस बनाते रहे। फ्रॉड में मुलविस दीगर कंपनियों के खिलाफ भी सरगोदा और लाहौर में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने माली साल 2023 के लिए इनकम टैक्स शेड्यूल जारी कर दिया। आमदन के हिसाब से इनकम टैक्स 35% तक लागू होगा। 50,000 रुपए जुर्माना तनख्वाह लेने वाले अफराद के लिए आमदन पर इनकम टैक्स 0 होगा। सालाना 6 लाख से जायद और 12 लाख तक 2.5% इनकम टैक्स वसूल होगा। सालाना 12 लाख से जायद और 24 लाख तक आमदन पर 15,000 फिक्स टैक्स होगा। 12 लाख रुपए पर 12.5% के हिसाब से टैक्स लगेगा। सालाना 24 लाख से जायद 36 लाख तक आमदन पर 1,65,000 फिक्स इजाफी 20% टैक्स होगा। 10 लाख रुपए माहाना आमदन पर फिक्स टैक्स के साथ 35% टैक्स अदा करना होगा। फैसलाबाद DHQ अस्पताल के मरीजों के लिए अच्छी खबर, 1 करोड़ रुपए की लागत से 2 एनेस्थीसिया की मशीनें खरीद ली गई। फैसलाबाद DHQ अस्पताल के मरीजों के लिए अच्छी खबर, 1 करोड़ रुपए की लागत से 2 एनेस्थीसिया की मशीनें खरीद ली गईं। अस्पताल में मरीजों के मुंतखब करदा ऑपरेशन हो सकेंगे। DHQ अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पहले वाली एनेस्थीसिया मशीन पुरानी होने की वजह से खराब हो गई थी। DMS DHQ अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अली खान का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया ने जाती फंड से मशीनें खरीदी हैं। नई मशीनों से मरीजों के ऑपरेशन हो सकेंगे। एनेस्थीसिया की मशीनें कुछ आउटडेटेड थी और कुछ का प्रोसेस हमने किया था नई परचेज करने का, तो वो जो तकरीबन प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया है और 2 नई एनेस्थीसिया मशीनें अनकरीब सिविल हॉस्पिटल में आ जाएंगी, जिससे जो ऑपरेशन हमारे रुके थे या डिले हो रहा था वो इंशाल्लाह अब नहीं होगा। उधर फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में जर्मनी के तावन से बने रीजनल ब्लड सेंटर की किस्मत का फैसला फिर लटक गया। इंडस कंपनी ने रीजनल ब्लड सेंटर का निजाम संभालने से कबल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से फंड्स मांग लिए। रीजनल ब्लड सेंटर को चलाने के लिए अलाइड अस्पताल ब्लड बैंक इंतजामिया 65 अफराद की मुंतजर है। इस हवाले से वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जफर अली चौधरी का कहना था कि 2 रोज कबल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के साथ रीजनल ब्लड सेंटर पर बात हुई। इंडस कंपनी रीजनल ब्लड सेंटर का निजाम चलाएगी, जिसके लिए इंडस कंपनी ने महकमा हेल्थ केयर से फंड्स मांगे हैं। फंड्स न मिलने तक अलाइड अस्पताल ब्लड बैंक इंतजामिया ही रीजनल ब्लड सेंटर का निजाम चलाएगी। फिटनेस सर्टिफिकेट की फीसों में इजाफे का फैसला, महकमा ट्रांसपोर्ट ने पंजाब हुकूमत को गाड़ियों, रिक्शों, डिलीवरी वैन्स और दीगर ट्रांसपोर्ट के फिटनेस सर्टिफिकेट के इजरा की फीस 10% बढ़ाने की समरी भिजवा दी। फिटनेस सर्टिफिकेट की फीसों में इजाफे का फैसला, महकमा ट्रांसपोर्ट ने पंजाब हुकूमत को गाड़ियों, रिक्शों, डिलीवरी वैन, दीगर ट्रांसपोर्ट की फिटनेस सर्टिफिकेट की अजरा की फीस 10% तक बढ़ाने की समरी भिजवा दी। बढ़ती हुई महंगाई के पेश नजर गाड़ियों की इंस्पेक्शन करने वाली कंपनियों ने रेट्स बढ़ाने का मुतालबा किया है। ओप्स इंस्पेक्शन प्राइवेट लिमिटेड के जेरे इंतजाम पंजाब में 29 व्हीकल इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सिस्टम सेंटर्स काम कर रहे हैं। मोटरसाइकिल, रिक्शा, टैक्सी, मोटर कैब, डिलीवरी वैन की इंस्पेक्शन फीस में 10% इजाफा किया जाएगा। दस्तावेजात के मुताबिक इंस्पेक्शन फीसों में इजाफे की समरी का जायजा लेने के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। उधर फैसलाबाद में चलने वाली हैवी ड्यूटी व्हीकल दीगर सूबों से रजिस्टर्ड होने लगी। पंजाब में गाड़ियों का ज्यादा टोकन टैक्स महकमा एक्साइज पर भी भारी पड़ने लगा। कमर्शियल व्हीकल्स मालकान गाड़ियां दीगर सूबों से रजिस्टर करवाने लगे। रवा माली साल के दौरान फैसलाबाद में एक भी नया ट्रक रजिस्टर्ड न हुआ। कोई भी मिनी मुसाफिर बस महकमा एक्साइज के पास रजिस्टर न हो सकी। रवा माली साल के दौरान सिर्फ 10 बसें रजिस्टर्ड हुई। हैवी ड्यूटी व्हीकल दीगर सूबों में रजिस्टर्ड होने से मकामी रेवेन्यू भी वहाँ मुंतकिल हो रहा है। बस पर सालाना टोकन टैक्स 2 से 4 लाख रुपए तक है। बैंक तातीलात के बाद फेस्को ने बिजली के बिलों की मुकर्ररा तारीख में 3 रोज की तौसीक कर दी। सार्फिन 27 मार्च तक बकाया जुर्मानों के बिल जमा करा सकेंगे। फेस्को हुकाम के मुताबिक बैच नंबर 9 और 10 के बिलों की मुकर्ररा तारीख में 3 रोज की तौसीक की गई है। निगरान हुकूमत की जंग में भी सेहत सहूलियात पर तवज्जो मरकूज। एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ मलिक सनाउल्लाह ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दौरा किया। एडिशनल सेक्रेटरी मलिक सनाउल्लाह ने गायनी, डेंटल, टीबी क्लिनिक और HIV सेंटर में सूरत हाल का जायजा लिया। वर्ल्ड बैंक के तावन से जंग में भी पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत मनसूबाबंदी जारी है। डेप्यूटी कमिश्नर जंग अब्दुल्ला खुरम नियाजी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें वर्ल्ड बैंक के तावन से पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत मनसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। CO जिला कौंसिल खालिकदाद गाड़ा और
सीओ म्यूनिसिपल कमेटी आदिल रांझा ने भी ब्रीफिंग दी। जंग में दरबार साहबा शरीफ अलमारूफ घोड़ियों वाली सरकार पर उर्स और मेले की तकरीबात का आगाज हो गया है। दरबार साहबा शरीफ अल मारूफ घोड़ियों वाली सरकार पर 5 रोजा उर्स मेले की तकरीबात का आगाज हो गया। गद्दी नशीन पीर सैयद शहबाज इल्म बुखारी और सजादा नशीन डॉक्टर पीर सैयद शहबाब आलम बुखारी ने तकरीबात का इफ्तिताह किया। उर्स में बड़ी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की और दुआएं मांगी, जबकि ज़ायरीन ने ढोल की थाप पर धमाल भी डाली। उर्स की 5 रोजा तकरीबात में मुख्तलिफ शहरों से मुरीदैन की बड़ी तादाद दरबार पर हाजिरी देंगे। गद्दी नशीन पीर सैयद शहबाज इल्म बुखारी का कहना है कि ये उर्स 77 साल से इसी तरह जारी है और मुरीदैन यहाँ आकर दुआएं मांगते हैं। उर्स के मौके पर ज़ायरीन के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरबाब के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में वापडा सिटी मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज, 200 पौधे लगाए जाएंगे। फैसलाबाद वापडा सिटी मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया। मुहिम के दौरान 200 पौधे लगाए जाएंगे। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मियां शाहिद जावेद कहते हैं कि दरख्त इंसानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। इसमें इंसानों की यानी सेहतमंद माहौल मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है और जो आलूदगी है उससे पाक होता है। वापडा सिटी मैनेजमेंट की तरफ से ये प्रोग्राम किया जाता है और इसका मकसद ये है कि यहाँ पे ना ये सिर्फ ये पौधा लगाना या तस्वीरें बनाना मकसद नहीं होता, ये पौधे की मुकम्मल हम देखभाल करते हैं। वापडा सिटी में इससे कबल भी 6000 से ज्यादा दरख्त मौजूद हैं। मैनेजमेंट कमेटी के मेंबरान कहते हैं कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। हर साल नए पौधे लगाए जाते हैं और इनकी हिफाजत भी की जाती है। ये सिस्टम को कायनात के सिस्टम को रन करने के लिए एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। तो इस चीज़ को एक जिम्मेदारी समझते हुए, फरीज़ा समझते हुए मैनेजमेंट कमेटी हमेशा यहाँ पे दरख्तों का मतलब लगाने का इनकार करती है। साडी जिहड़ी शजरकारी मुहिम है ना हर साल हुंदी है। इस तो पहले पुराने भी पौधे बहुत लगे ने जदों दा वापडा सिटी स्टार्ट होया है। वो जिहड़े हुण जवान हो गए ने, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ जगह तो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ रिप्लेस कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता नਵੇਂ भी लाई जा रहे हैं। वापडा सिटी मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से जारी शजरकारी मुहिम 2 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। पंजाब गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद में स्टूडेंट सर्वे अवार्ड तकरीब, रीजनल डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रिफत इकबाल, प्रिंसिपल मिसेस आयशा रिफत और दीगर ने शिरकत की। पंजाब गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद में स्टूडेंट सर्वे अवार्ड तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें रीजनल डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रिफत इकबाल ने खसूसी शिरकत की और सर्वे में हिस्सा लेने वाली तालिबात में इनामात तकसीम किए। सारे टीचर्स बहुत अपने एफर्ट्स डालते हैं और नज़र आती हैं सबके एफर्ट्स, और मतलब पंजाब कॉलेज का सारा मैनेजमेंट सब कुछ बहुत बेस्ट है। हर कॉलेज से मतलब सबसे टॉप पे है और मतलब सर्वे में जो भी हमने सारे रिव्यूज़ दिए थे वो सारे ऑनेस्ट थे। सर्वे में हमने अपनी रोज़ाना क्लास के बारे में इंटरव्यू देना होता है, जिसमें उसमें इमोजीज होती हैं और जो टीचर्स के बारे में बताना होता है कि टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं और बी ऑनेस्टली इसको फिल किया जाता है और हम सब इसको बी ऑनेस्टली फिल करते हैं। रीजनल डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस रिफत इकबाल का कहना था कि इदारे की बेहतरी और खुद एहतसाबी के लिए हर माह तलबा से सर्वे करवाया जाता है। सर्वे में तालिबात असातिज़ा के पढ़ाने के तरीकाकार पर भी अपने तासुरात बयान करती हैं। तो आज की ये तकरीब बेसिकली उन बेटे और बेटियों को अप्रिशिएट किया गया जिन्होंने इस सर्वे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिर ज़ाहिर है हज़ारों की तादाद में बच्चे होते हैं तो उसमें कुरानंदाजी की जाती है और जिन बच्चों के फिर नाम उसमें आते हैं उनको इनामात से नवाजा जाता है। मंथली बेसिस पे ये सेरेमनी होती है। तकरीब में प्रिंसिपल मिसेस आयशा रिफत, वाइस प्रिंसिपल शबनम ज़िया, असातिज़ा और तालिबात ने शिरकत की। असातिज़ा ने इदारे की बेहतरी के लिए सर्वे में दी गई तजावीज़ को सराहा। कैमरामैन अकील नकाश के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। और आपको बताएं, रमजान मुबारक में अमाल सालिह के सवाब में कई गुना इजाफा हो जाता है, तो ऐसे में जाए नमाज, सफ़ें, तस्बीह और टोपियों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी हैं। रमजानुल मुबारक के इस रहमतों और फजीलत वाले महीने में जहां हर चीज़ का सवाब कई गुना ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे में जानते हैं जानमाल, तस्बीहों और टोपियों के रेट क्या हैं। दुकानदार के पास जब वो खरीदारी करने जाते हैं वो दुगने से भी चुगने दाम बता रहे हैं, जो कह लें कि 50% अप हो चुके हैं। कह लें कि जो 150 वाली जो चीज़ थी ना वो 200 और 300 रुपए की हो चुकी है। डबल रेट हो गए हैं, हर चीज़ के डबल रेट हो गए हैं। जान नमाज भी डबल रेट हो गए। जो पहले 500 का था अब 1000 से ऊपर का है। वो भी टोपी भी वो भी जो 200 की थी वो भी 400 की हो गई है। शहरियों का कहना है कि रमजानुल मुबारक में हर चीज के रेट दुगने से भी ज्यादा हो जाते हैं। तस्बीह 150 से 300, टोपी 200 से 400, जबकि जाए नमाज 500 से 1000 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि क्या करें, फिर भी रेट देखे हैं। एक चीज पिछले साल रमजान में 120 की मिली थी, वही है इस रमजान
180 की भी मिल रही है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। नॉर्मल से नॉर्मल जान माल भी है ना, वो भी अब 500-600 के नीचे नहीं है। पहले जो जान माल 300 का था, अब रमज़ान आ गए इन्होंने 500 का कर दिया। अगर रमज़ान में लोग किसी को तोहफे वगैरह गिफ्ट वगैरह देते हैं, टोपी तस्बीह जान माल वगैरह ये सारे लगे हुए हैं। अगर वो जान माल है ना, वो हमने जान माल इन्होंने इतने बढ़ा दिए हैं कि कोई ले नहीं सकता। शहर के मुख्तलिफ बाजारों में इबादत में इस्तेमाल होने वाली अशिया की खरीदारी के लिए दुकानों पर लोगों का रश लग गया। दुकानदार कहते हैं रमजान में अशिया की मांग में इजाफा होता है। रमजान शरीफ का महीना आ रहा है, अल्लाह पाक की रहमतों और बरकतों का महीना है। इसमें नमाजी ज़्यादा होते हैं, टोपी तस्बीह जान माज की खरीदारी होती है। अभी कीमतों में भी जान माज टोपी तस्बीह में काफ़ी इजाफा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी खरीदारी हो रही है। इंतजामिया की लाअहली के बाइस इबादत गुजारों का इबादत करना भी मुश्किल हो गया। टोपियों तस्बीहों और जानमाज के रेट दुगने से भी जायद हो गए। इंतजामिया की इस तरफ कोई तवज्जो दिखाई न दे रही। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41 फैसलाबाद। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना है।